Good morning, students. Welcome to you in your political science class. In our last classes, we discussed our chapter number 5, that was legislature. Today we are going to start our chapter number 6, judiciary and judiciary in India. And you know, in the starting of other classes, in the previous classes, we discussed there are 3 organs of government: legislature, executive and judiciary. Before this, we completed 2 organs: legislature for lawmaking and for executive for implementation of law. The third organ, which is very important also, is the judiciary. So in this chapter, we will read about judiciary in detail. The parts which we will read will be: why do we need independent judiciary? What is independence of judiciary? And appointment of judges, removal of judges, and structure of the judiciary. So first part is why do we need independent judiciary. देखिए हमें independent means not under any other organs of government like legislature and executive. So why do we need independent judiciary? देखिए judiciary जो होती है, the main work of the judiciary or the courts are to provide justice, to give justice to the people, and between the disputes can be there among people or among different groups, different individuals. So these disputes are being solved by the judiciary. Besides this, as there is rule of law in the country. What is rule of law? Rule of law means that when law is supreme, all people of the country, whether it is the president of the country or the common man, all are equal before law. Equal treatment will be given to all, and this is rule of law. जब लॉ के सामने सबको बराबर माना जाता है और कंट्री में लॉ का रूल होता है, उसको रूल ऑफ लॉ का नाम दिया जाता है. तो अगर हम रूल ऑफ इंडिया में जुडिशरी क्यों सेटअप की गई है और क्यों हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत होती है? नंबर 1, टू सेट द रूल ऑफ लॉ. नंबर 2, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड third, to settle the disputes. Not only this, as in the country, fundamental rights are given in the supreme law of the country. So, fundamental rights are also protected by an independent judiciary. We read the chapter earlier, fundamental right. One right is there which protect all the other rights. You know what is that? That is right to constitutional remedies. So that right is very important. By the help of that right, we can go to the court to implement our right. So independent judiciary is needed for all these purposes. But what is meant by independence of judiciary? Independence of judiciary का meaning क्या होता है? Independence of judiciary means that judiciary should not under the control of 2 organs like legislature and executive. Appointment of the judges should not be through these organs of the government, or judges should be able to perform their function without fear and or फेवर. जब जजेस अपना काम बिना फेवर के, बिना डर के करें, किसी के कंट्रोल में रह के ना करें, किसी के दबाव में ना रह के करें, और वो उनसे दूसरे ऑर्गन से इंडिपेंडेंट हो, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. बट what is independence of judiciary?
be completed. But independence of judiciary doesn't mean the lack of accountability. इसका मतलब lack of accountability नहीं है कि जिम्मेवारी नहीं. तो इंडिया में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कैसे मेंटेन किया गया है? सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें हम, तो जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन. दे आर नॉट politically elected. They have no need to contest election. They are appointed on the basis of qualification. For example, for become a judge of Supreme Court, a person should be at least do practice of advocate. He or she should be an advocate of Supreme Court for 10 years. Or he or she should be work as a judge of the any high court. Any high court for 10 years. The person can be a legal jurist. Jurist का मतलब क्या होता है कि कानून के मैटर की उसको ज़्यादा जानकारी हो, कानूनी चीज़ें उसको ज़्यादा पता हो, तो ऐसे पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है. लेकिन एक बार जज बनने के बाद द पर्सन कैन नॉट बी रिमूव अप टू द हिज और हर रिटायरमेंट. अपनी रिटायरमेंट तक पर्सन को हटाया नहीं जा सकता किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को. इफ द पार्लियामेंट वांट्स टू दैट द रिमूवल ऑफ द जज, द पर्सन कैन बी रिमूव थ्रू ए वन प्रोसेस नोन एज इम्पीचमेंट. अगर किसी को हटाने का पार्लियामेंट चाहती है तो वो एक प्रोसेस है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. दिस प्रोसेस इज इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट मीन्स द रेजोल्यूशन कैन बी पास बाय 2/3 मेजॉरिटी. 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी मतलब के द्वारा ही, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ही जो किसी भी जज को हटाया जा सकता है. 2/3 मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनके 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, एट टाइम 2/3 का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी किसी जज को रिमूव किया जा सकता है. और अगर खाली अपॉइंटमेंट नहीं, खाली रिमूवल नहीं, और पार्लियामेंट में उनके अगेंस्ट किसी भी टाइप की डिस्कशन नहीं हो सकती, एक्सेप्ट उस केस को लेकर जब तक कि जब उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट चल रही है. अदरवाइज नो हाउस कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. उनके कंडक्ट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में डिस्कशन नहीं हो सकती. जब अगर इम्पीचमेंट चल रही है उसके दौरान दे कैन, द पार्लियामेंट मेंबर कैन डिस्कस देयर बिहेवियर, अदरवाइज नो, दे कांट डिस्कस द बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ द जजेस. अब अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करें, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि चीफ जस्टिस जो है सीनियर मोस्ट जज को ही बनाया जाता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन इस ट्रेंड को भी, इस कन्वेंशन को भी 2-3 बार इंडियन हिस्ट्री में ये टूटा, जब चीफ जस्टिस जो था वो सीनियर मोस्ट जज ना होकर किसी दूसरे को बनाया गया. दिस वाज अकर्ड इन 1973 and 1975. 1973, A.N. Roy was appointed. A.N. Roy was appointed as the CJI, Chief Justice of India. उसके उनके पीछे 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनको छोड़कर इस पर्सन को, A.N. रॉय को जज बनाया गया. ऐसे ही 75 में वन जस्टिस M.H. Beck was appointed as the judge of the Chief Justice of India. बट उनके साथ भी उनके जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उस कोर्ट में, वन पर्सन वाज H.R. खन्ना. उनको छोड़कर इनको अपॉइंट कर दिया गया एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब चीफ जस्टिस को तो अपॉइंट कर दिया, चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस की अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो बाकी के जजेस जो हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं. तो बाकी के जजेस जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द CJI.
तो actual in India there is parliamentary form of government. In all the appointments which are made by the President of India, actually they are being done by the Cabinet Council of Ministers with Prime Minister. तो 1982 से लेकर 1998 तक इस मैटर को, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार आया कि किस तरह से कंसल्टेशन की जाए, कैबिनेट का कितना रोल होगा। चीफ एक्चुअल में तो हम देखते हैं कि मोस्टली द रोल इज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो लेटर ऑन एक डिसीजन में ये सामने आया कि जो है चीफ जस्टिस विल कंसल्ट विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Chief Justice will consult with the 4 senior most judges of the Supreme Court in the appointment of the other judges. तो उसका एक कॉलेजिएट होगा, एक कॉलेज बनेगा जिससे कि 4 मेंबर्स होंगे सीनियर मोस्ट और चीफ जस्टिस होगा, और उनकी कंसल्टेशन वो कंसल्ट करेंगे, वो अपनी अपॉइंटमेंट कि किस पर्सन को जज बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का, एंड देन दे विद consultation with the ministers, that they will send the list to the ministers, and then after that the judge of the Supreme Court can be appointed. और अगर हम रिमूवल की बात करें जजेस की, तो रिमूवल का प्रोसेस जो है दैट इज वेरी टफ। द जज कैन बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन्स 2/3 majority ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी जो है उसके द्वारा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी किसी जज को हटाया जा सकता है। और ये प्रोसेस भी जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी टफ, और इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी जज को हटाया गया हो और उसके कंडक्ट को लेकर, मिसबिहेवियर को लेकर। तो लेकिन वन एग्जाम्पल इज गिवन इन आवर बुक, दैट वाज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव ए जज, कि कैसे एक जो अटेम्प्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा। दिस वाज इन 1991। 1991 वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज वी रामास्वामी। वी रामास्वामी वाज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अर्लियर ही वाज द जज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। तो उनके अगेंस्ट 1992 में 1992 में पार्लियामेंट ने उनकी अपॉइंटमेंट के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया करने, एक हाउस में, इन वन हाउस द रेजोल्यूशन वाज पास, इम्पीचमेंट प्रोसेस वाज स्टार्टेड अगेंस्ट वी रामास्वामी। वी रामास्वामी उनके अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन जो था वो शुरू हो गया, लेकिन दूसरे हाउस में जब गया तो कांग्रेस रिमेन एब्सेंट। क्यों रेजोल्यूशन पास किया था कि ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रोस मिसयूज ऑफ ऑफिस। तो उनको कि ही वाज नॉट हैड प्रॉपर यूज ऑफ द पब्लिक फंड्स को वो जो थे प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको अपॉइंट जो था रेजोल्यूशन पास किया। लेकिन दूसरे हाउस में, राज्यसभा में कांग्रेस एब्सेंट रही, तो ही वाज नॉट रिमूव, उनको रिमूव नहीं किया गया। सो दिस वाज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ जज। अब हम अगर जज की बात करें, आवर नेक्स्ट पार्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट। अगर हम नीचे से शुरू करें तो ये पिरामिडिकल स्टेटस है, पिरामिड की तरह है। इन इंडिया देयर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट। इन सबऑर्डिनेट कोर्ट देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ केसेस। दे कैन हियर 2 टाइप ऑफ केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल। Civil cases are those cases which are related with money matters or any other simple dispute, ordinary dispute. Criminal cases are those cases which are related with the murder and killing of any person. तो दोनों ही के तरह के केसेस को सबऑर्डिनेट कोर्ट में शुरू किया जा सकता है। Then the decision of the after that
Above the subordinate court, there is district court. There are district court in every district. As our in Kurukshetra also, district courts are there in 13 sector near our school. So district courts जो हैं वो subordinate court के अगेंस्ट जो डिसीजन जो है वो सुनती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। और इसके साथ साथ जो है ये दिस also decide cases involving serious criminal offences. क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेटेड केसेस को भी ये सुनती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है, बट इट कैन बी देयर कि 2 states कैन बी है 1 हाई कोर्ट। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हैव 1 हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। तो ये हाई कोर्ट जो है वो दे आर कंसिडरिंग केसेस अगेन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, और ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस को भी सुन सकती हैं। और जो स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंडर एरिया केसेस आते हैं, जुरिस्डिक्शन मीन्स उनका एरिया, अधिकार क्षेत्र, जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में केसेस आते हैं वो हाई कोर्ट ऐसे केसेस को सुनती है। और दिस ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स बिलो इट। जो इनके नीचे कोर्ट्स हैं इनके ऊपर कोर्ट ये कंट्रोल भी करती हैं, इनके अगेंस्ट केसेस को भी सुनती हैं। अब आ गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, and the decision appeal can be made against the decision of the lower court to the supreme court. जो जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये फंडामेंटल राइट से भी जो रिलेटेड है उन केसेस को सुनती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैटर को ट्रांसफ़र भी कर सकती हैं फ्रॉम 1 कोर्ट टू अदर, फ्रॉम 1 हाई कोर्ट टू अदर, और दे कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। अपने पास भी वो ला सकती हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ला सकती हैं, केसेस को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, अपने पास भी ला सकती हैं। तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द जुरिस्डिक्शन ऑन देन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड नेक्स्ट पार्ट which will include the jurisdiction in detail of the Supreme Court, what is BIL, judicial activism, and how the judiciary protect the rights of the citizen. So all of you are supposed to read the chapter, complete the assignment, do your work. Thanks.